टेस्को के बाद मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। अच्छा, क्या था ये? हॉस्पिटैलिटी स्पेस में था, स्टेओलॉजी करके हमने स्टार्ट किया था, दो पार्टनर्स साथ में लेके, एंड वी वर ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरिएंट ऑफ एयरबीएनबी फॉर इंडिया। अच्छा, दिस कब की बात है? ये 2014 की बात है। वाओ। तो वो एक दो साल ट्राई ये किया। तब फ्लिपकार्ट वगैरह ने $1 बिलियन उठाए थे, एकदम स्टार्टअप का एक थोड़ा रश आ रहा था कंट्री में। हाँ, काफ़ी रश आ चुका था। वो 2 साल ट्राई किया, नहीं चला, फिर बंद कर दिया। बिगेस्ट लर्निंग क्या थी? बिगेस्ट लर्निंग थी यार, हमने Hi guys, welcome to another episode of our podcast, Talent First. Today we have someone who I would say is a stalwart, is a OG, the original gangster of this BPO IT services tech industry. Uh, there's one, like, I talk to a lot of leaders and I always ask them, can you recommend me some mentors, someone who I can look up to, and there is one name that keeps coming up, and that is Mr. Sandeep Dar. So hi Sandeep, hi, how are you? वेरी गुड। हाउ यू डूइंग? कैसा चल रहा है? हाउ आर थिंग्स गोइंग? बस सब बढ़िया। आप फिट कैसे हो इतने? आप बस काफी फिट हो। व्हाट डू यू डू फॉर फिटनेस? I practice a Chinese art called Qigong. What is that? It's like the Chinese equivalent of yoga, if I were to loosely define it. And so I practice a couple of hours a day, and looking after myself is the first priority. Perfect. Everything else comes second. Makes sense. So Sandeep, let's start with the elevator pitch. हाँ जी। Who is Sandeep Dar? हिंदी इंग्लिश जो आपको यूज करना है, ये मत बताना आप काम क्या करते हो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग कौन हो आप? As a human being, boss, I'm a आम आदमी। आप मुझे ओजी बोल दीजिए, स्टालवर्ट बोल दीजिए, बट आई एम लाइक एनीवन एल्स ऑन द स्ट्रीट, एंड इन द क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, like everyone else is, and that's why I'm. How do you define happiness? It's an inner feeling of being good, being at peace with yourself, and having a perpetual smile on your face. Perfect. Sounds good. So Sandeep, let's try to get a bit deeper into your journey. आप आए कहाँ से हो? फैमिली कहाँ से आपकी? So genetically, I'm from Kashmir, Oh. and but Which here, part of Kashmir? from Srinagar. Nice. My parents moved out in the 50s, and so I was born in Delhi. And You are a Kashmiri Pandit. I'm a Kashmiri Pandit. Yeah. So I was born in Delhi. I grew up largely in Delhi. Okay. Where in Delhi? West Delhi, Rajouri Garden area. Lawrence Road. So, yeah. And I've been all over the place. Early childhood was in London because my dad was posted there. Wow. And then most of my academics happened in the Delhi NCR region. Tell me about London experience. How old were you when you were in London? 2 years to 6 years. अच्छा, तो कुछ याद ही नहीं होगा आपको। But when this is अच्छा, पहले ही पूछ लिया। so आप थोड़ा बताइए, जब आप 10th क्लास में थे, 9th 10th के अंदर, वो हमने देखा है बहुत डिफाइनिंग पार्ट होता है लोगों की लाइफ करियर के अंदर। तो 10th क्लास में कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे आप? हाउ किस टाइप के स्टूडेंट थे? थोड़ा बताइए अपने बारे में। So मैं सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय का में पढ़ा हूँ। नथिंग फैंसी। Nothing fancy. I think it's very fancy. तो because it's a very interesting school, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स के मिलिट्री वालों के बच्चे आते हैं. So everyone from a हवलदार son to a general son was there. So from a very early age आप सबको इक्वल समझते हैं. तो किसी का कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता. आपके लिए सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप सबके साथ. ये मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, फैमिलीज हैं, इनके अंदर ये है एक चीज़, बिकॉज दे ऑल हैव स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड जीरो एंड दे ऑल हैव सीन दैट इन सम फॉर्म और द अदर the relationship really matters between bureaucrats, between all of these people. Unlike industrialists, unlike other professions, bureaucracy के जो families हैं, उनमें discipline बहुत ज़्यादा दिखा है. Is that? Of course, it's a disciplined upbringing. Yeah. और when I was a youngster, तब discipline ज़्यादा होता था. आज के डेट में कम discipline होता है, because the way you bring up children has changed, right? तो जब आप 10th 11th में थे, क्या ली? साइंस ली थी, कॉमर्स ली थी, क्या थी? साइंस ली थी. साइंस ली. पढ़ाई में अच्छे थे मतलब? 10th क्लास तक अच्छा था. हाँ. और 10th क्लास तक मैं फर्स्ट सेकंड आ जाता था क्लास में. चीटिंग वीटिंग कर गया? हाँ, बिना नहीं, चीटिंग नहीं करते थे. ऐसे कभी पेपर खुलवा लिया, कुछ कर लिया, लीक करवा लिया, वो करा. चीटिंग नहीं करते थे, लेकिन चीटिंग होता है कि आपका क्वेश्चन है और आपने साथ में कुछ रखा है और कर रहे हैं, तो आपको दिमाग अपना लगाना चाहिए. हाँ. तो वो सब करते थे. तो लेकिन 10th क्लास तक आके ना मेरा फिर अब पढ़ाई से मन हट गया. अच्छा. क्योंकि अब वो हो गया. अब उसमें तो किस चीज़ में मन लगा फिर? उसके बाद फिर ड्रामा में मन लगा. अच्छा. उसके बाद बीच में सिंगिंग का शौक हुआ.
तो मैंने, हमारा एक म्यूज़िक टीचर होता था स्कूल में, उसको जाके बोला हमें संगीत सीखना है। तो बड़ा खुश हो गया कि मेरा एंथुसियाज्म देख के, तो उसने मुझे क्लासेस ज्वाइन कराई और 1.5 महीना मैंने क्लासेस ज्वाइन की। 1.5 महीने बाद वो मेरे पास हाथ जोड़ कर आया और कहा कि संदीप जी, हम आपको संगीत नहीं सिखा सकते आप कृपया कल से आना बंद कर दें। तो माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिंगर गॉट क्रश्ड एट अ यंग एज। सो क्लियरली आई हैड नो टैलेंट फॉर इट। सो आप 11th-12th में आप कह रहे हो कि थोड़ा पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ें कर रहे थे, हाँ, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर ट्राइंग टू से कि आप कोई बहुत अच्छे परफॉर्मर नहीं थे 11th-12th में। 11th-12th में एवरेज, Decent. हाँ डिसेंट परफॉर्मर थे। हाँ। तो नाउ दैट यू लुक बैक इन टाइम एंड जो आपने और चीज़ें की, नाउ आप जैसे आप लीडर बने, आपने रियलाइज किया लाइफ के अंदर एकेडमिक्स के ऊपर भी बहुत चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगा कि वो जो 2 साल थे 11th-12th वाले, इवन दो अकेडमिकली आपने इतना ग्रेट नहीं किया, आपने और फैसेट्स ऑफ लाइफ लाइक ड्रामा, सिंगिंग, थोड़ा एक लीडरशिप क्वालिटीज आई, कुछ नई चीज़ें सीखी, ऐसा लगा आपको? हाँ, आपका जो होलिस्टिक थॉट प्रोसेस। हाँ, जो आपका माइंड है वो ओपन अप हो जाता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, अगर आप सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं तो आपको लगता है, अच्छा आप साइंस स्टूडेंट हैं या फिजिक्स स्टूडेंट हैं, तो आपको लगता है द होल वर्ल्ड इज फिजिक्स। राइट 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 द होल वर्ल्ड इज नॉट फिजिक्स। राइट। The world has art, it has commerce, it has fine arts, it has sports, it has so many other things. Right? तो दुनिया में बहुत कुछ है, तो आप यूनिडायमेंशनल अगर बनेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अभी थोड़े टाइम पहले हमने हैप्पीनेस की बात करी। जी, तो जी। इन माय व्यू हैप्पीनेस रिक्वायर्स यू टू हैव डाइवर्स एक्सपीरियंसेस। सो कोई भी बंदा इंडिया में अगर 11th-12th में साइंस ले रहा हो, मोस्टली दिल दिमाग आईआईटी का होता है। आपका भी था? हाँ, ट्राई तो किया। ट्राई क्या, कैसी ट्राई थी? ट्राई किया, नहीं निकले। नहीं निकली, फिर कहाँ गए? उसके बाद हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स ऑनर्स कर ली। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहाँ से? ARSD कॉलेज दोनों पे, साउथ कैंपस में। एंड देन पहली नौकरी लगती है सेल्स में। तो ये क्या? एक्चुअली पहले IMT गाजियाबाद गया MBA करने। हाँ, अच्छा, IMT गाजियाबाद गया, ये कमलनाथ वाला। कमलनाथ वाला। दिस इज द वन, दैट वन। That's right. ये कविनगर, वो दैट इज दैट Correct. राजनगर। राजनगर। गॉट इट। IMT उस टाइम पे नया नया बना था। 8 साल हो गए थे। 8 साल, मतलब जैसे अब तो IMT को लोग एक उसमें देखते हैं कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट। करेक्ट। उस टाइम पे प्राइवेट था, बिल्कुल। तो घर वाले अराउंड के लोग थोड़ा एक सस्पिशन भी था कि उस टाइम पे प्राइवेट पे इतना भरोसा नहीं था। ऐसा था आपके केस में? नहीं, इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, लोग मान रहे थे। हाँ। ये था कि उन दिनों MBA बड़ा अपकमिंग कोर्स था, तो अगर आपका MBA, अगर आप IIT वगैरह में नहीं निकलते थे तो कहते थे चलो MBA कर लो, उसके बाद जॉब लग जाती है। बिकॉज द होल फोकस एट दैट टाइम ऑफ एजुकेशन वाज कि यार इसके बाद जॉब लगनी चाहिए। ठीक है ना, तो MBA के बाद जॉब लगने के चांस बड़े हाई होते तो थे। ये कैंपस प्लेसमेंट से लगी थी आपकी NIT में नौकरी? NIT की नहीं, कैंपस के बाहर से हुई थी। क्या कैंपस में नहीं हुआ आप होंगे? कैंपस में मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब मिली थी। अच्छा, किस चीज़ की? सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में। क्या मतलब? सर्कुलेशन में क्या होता है, आपको सुबह सुबह जागना है और आपको इंश्योर करना है कि हर गली में, हर कॉलोनी में उनके अखबार पहुंच गए। सर्कुलेशन सुनने में कुछ बहुत बड़ा कुछ। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मतलब काफी मजदूरी वाला काम है। गॉट इट। सो आपने वो चूज नहीं किया, आपने NIT चूज किया। हाँ, तो फिर मैंने अलग से अप्लाई किया। नाउ मैंने जितने भी लोगों से बात की है इस इंडस्ट्री के, मुझे एक चीज़ समझ आई है, NIT अपने ज़माने में एक पाथ ब्रेकिंग कंपनी थी, आज भी है, बट उस ज़माने में तो उन्होंने गेम बदल दिया। एंड कंप्यूटर्स, आई थिंक ये 88-89 की बात है, उस टाइम पे सैम पेट्रोडा, राजीव गांधी, इस बार कंप्यूटर्स के ऊपर एक बात छिड़ गई थी। तो आप एज अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर कंप्यूटर्स हैव नथिंग, आप कंप्यूटर्स के बारे में क्या सोचते थे? क्या लगता था आपको? आप कुछ मिस्ट्री थी या गोल्ड रश था कि भाई यहाँ पे पैसा बनेगा, या फिर था कि कुछ कूल सा करते हैं? एक्चुअली मैं गया NIT सेल्स करने के लिए। ठीक है, वो पैसे अच्छे लग रहे थे। कितने सैलरी थी? 20,000? नहीं, उस समय उतनी भी नहीं होगी। महीने की थी 2,500 रुपये। माय गॉड। ठीक है, तो वो क्रेजी। पैसे अच्छे लग रहे थे, तो हमने कहा कि चलो कर लेते हैं। तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आपको हम सॉफ्टवेयर सेल्स के लिए हायर करना चाहते हैं। सो वो एक नया डिवीजन लगा रहे थे, इनसॉफ्ट बोलते थे उसको, जिसमें हम साइबेस वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बेचते थे। तो मुझे बोला कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो मैंने कहा भैया, मैंने तो कभी कंप्यूटर को हाथ लगाना दूर की बात है, मैंने तो देखा भी नहीं है, तो आपको लगता है कि मैं बेच पाऊंगा? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे जिससे कि आप कस्टमर के पास जाके एक इनिशियल कन्वर्सेशन कर सकते हैं। फिर जब कस्टमर को ज़्यादा टेक्निकल डिटेल चाहिए तब आप वापस आ जाइए और एक इंजीनियर आपके साथ चला जाएगा। तो ये उनका मॉडल था। अब लीड जनरेटर था एक तरह से। हाँ, मैं लीड जनरेटर था। तो वो करके हमने स्टार्ट कर लिया। तो फिर पता लगा कि ऐसे मतलब काम करना आसान नहीं होता था, क्योंकि क्या होता था कि आपने कस्टमर को कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताना शुरू किया,
अब वो वापस क्वेश्चन पूछता था, फिर आप जवाब देते थे। अब एक पॉइंट आता था जब आपकी नॉलेज खत्म हो जाती थी, ऊपरी नॉलेज खत्म। लेकिन उस समय आप कस्टमर को ये बोलना बड़ा मुश्किल था कि बस मुझे इतना ही आता है, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो ठीक क्या है? करते थे आप? तो हम फिर और अपनी बड़ी तरफ बात से है, यू नो वी यूज्ड टू स्टार्ट मेकिंग अप आंसर्स, तो कुछ जो हमें इंटेलिजेंस लगा के हम कुछ जो बोल सकते थे वो बोलना शुरू कर देते थे। उस टाइम पे ना इंटरनेट था तो कोई रेफरेंस भी नहीं था कि गूगल कर कुछ भी लो। नहीं था, नहीं गूगल कर लो, कुछ नहीं था। तो ये सब होता था। क्रिएटिव थे आप, स्टोरी वोरी बनाने हाँ, आते। स्टोरी वोरी बनाते थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि एक दिन मैं एक यहाँ बैंगलोर में ही था मैं, तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ मैं गया सेल्स करने के लिए। तो उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2 साइंटिस्ट होते थे। अच्छा। उनका दिन में और कोई काम नहीं होता था। उनका मेन जॉब था कि अलग अलग कंपनियों से जो सेल्स वाले आएंगे उनको क्वेश्चन पूछ के मजे लेना। ठीक है? तो उनके हाथ में लग गया। हाँ। तो उन्होंने मजे लेने स्टार्ट किए, उन्होंने और क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए, मैं और झूठ बोलता गया और स्टोरी बनाता गया। ठीक है? तो उन्होंने आधे घंटे में मेरे को मतलब मेरे सारे कपड़े उतार दिए एंड मेड मी फील कि मतलब मुझे कुछ नहीं आता। तो मतलब औकात दिखा दी। हाँ बिल्कुल। तो उस समय मैं बाहर निकला और मैंने कहा कि आज के बाद ऐसे मैं कभी होने नहीं दूंगा। अच्छा। ठीक है? एंड देन आई रियलाइज कि यार ये मॉडल की मैं ऊपर की बात करूंगा फिर कोई और आएगा डीप बात करने के लिए, चलता नहीं है। तो मैंने कहा मुझे अपने आप को ट्रेन करना है। तो अब गुड न्यूज़ ये थी कि मैं एनआईटी में काम करता था और वहाँ पे दिन में तो क्लासेस चलती थी, रात को लेकिन सारे कंप्यूटर फ्री होते थे। ठीक है? और इन दोनों अगर आपको कंप्यूटर सीखना था तो आपको यू नीडेड एक्सेस टू द कंप्यूटर। तो एनआईटी में मेरे पास एक्सेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मैं दिन में सेल्स करता था, रात को फिर घर जाके, घर पास में ही था, खाना खाता था, फिर मैं रात को वापस ऑफिस आ जाता था। तो मेरे पास कंप्यूटर भी थे, मेरे पास मैनुअल भी थे, मेरे पास खुद सीखा आपने? तो मैं खुद ही बैठ के अच्छा एक एक करके सॉफ्टवेयर हम सीखते गए। क्या किया आपने? समझा नहीं, क्या सीखा आपने? तो जैसे अगर आपको स्प्रेडशीट सीखनी है, ठीक है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर भी पड़ा हुआ है, कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है, उसका मैनुअल भी पड़ा हुआ है। तो आप मैनुअल पढ़ के उसमें आप सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे करके और फिर एनआईटी में हमारे पास सारे जर्नल आते थे जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं वगैरह, वो सारे पढ़ लेता था मैं। तो उससे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो सारी नॉलेज आ जाती थी। तो ये 1 साल में किया आपने? हाँ, तो 1 साल बाद मैं उस इंस्टीट्यूट में दोबारा गया। जो रिसर्चर वाले जहाँ उन्होंने मजे लिए थे मेरे से, और अब की बार मैं मजे लेकर आया। अच्छा। क्योंकि मेरे पास उनसे ज्यादा नॉलेज थी और लेटेस्ट नॉलेज थी कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है वगैरह। तो सेल तो कुछ हुई नहीं लेकिन खुशी बड़ी हुई कि हाँ आज मैंने कुछ सिद्ध कर दिया। ठीक है? तो एनआईटी में आप 1 साल रहे। हाँ। अब मेरे को आपसे पूछना है बारे में कि एनआईटी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं, बिकॉज आपने वो हार्ट में देखा कि एनआईटी ने ऐसा क्या यूनिक किया कि वो एक इंडस्ट्री बना गए इतनी बड़ी। यार उन्होंने मतलब विजन था उनका कि दे प्रेडिक्टेड कि आगे चल के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की लार्ज स्केल में डिमांड आने वाली है, क्योंकि उन्होंने देखा कि दैट वाज द टाइम व्हेन कंपनीज वर कंप्यूटराइजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। और वो शुरू में क्या करते थे, पेरोल कंप्यूटराइज करते थे, सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटराइज करते थे। तो उनका जो उनके फाउंडर्स थे उनका ये विजन था कि ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। और इसके लिए उन्होंने रियलाइज किया कि हमें लार्ज स्केल में वी हैव टू डेमोक्रेटाइज कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन कांट बी कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग में जाके अगर आपने एमकॉम की वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है तभी आपको प्रोग्रामिंग आएगी। वो कहेंगे सबको सिखानी है। ठीक है? तो इनफैक्ट फाइंडिंग टीचर्स इटसेल्फ वाज डिफिकल्ट। यू हैव टू ट्रेन द ट्रेनर, राइट? पहले उनके जो ओरिजिनल टीचर्स थे IIM अहमदाबाद से निकल के लोग लोटस 1 2 3 जो स्प्रेडशीट होती थी जो आज का एक्सेल है वो सिखाते थे। ठीक है? तो उससे फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनके स्टूडेंट्स होते थे उनमें जो सबसे अच्छे स्टूडेंट होते फिर वो टीचर बन जाते थे। साइकिल बन गई। तो वो साइकिल बन गई। तो उस तरह वो फिर ग्रो होता गया। तो अगर एनआईटी नहीं होता और अगर उन्होंने ये डेमोक्रेटाइज नहीं किया होता तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री नहीं इतनी बड़ी नहीं बनती। तो एनआईटी के बाद कहाँ जाते हो आप? एनआईटी के बाद मैं ब्लू स्टार गया। तो ब्लू स्टार क्या करते हैं? Blue Star is very well known for air conditioning. अच्छा, Blue Star but that time Blue Star had a tie up with Hewlett Packard. Okay. तो उन दिनों IBM HP वगैरह ये डायरेक्टली इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकते थे। So they used to operate लिबरलाइजेशन नहीं हुई थी ना। हाँ, तो वो फ्रेंचाइज यूनिट्स के थ्रू ऑपरेट करते थे। तो ब्लू स्टार में हमारा कंप्यूटर डिवीजन था, उसको HP डिवीजन बोलते थे। तो उसमें हम HP के प्रोडक्ट्स बेचते थे, लाइक प्रिंटर वगैरह, प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर्स, PCs। उन दोनों PC एक एक करके बेचा जाता था। हाँ, समझ गया। उन दोनों आप सुपरमार्केट में जाके ये नहीं कि वहाँ 50 PC पड़े हुए। तब PC महंगे भी बहुत थे ना। हाँ, बहुत महंगे 80,000 रुपए थे ना। हाँ, 1-1 लाख का PC होता था।
ये प्रिंटर बड़े महंगे होते थे। हाँ आज की डेट में जो आप इंकजेट प्रिंटर 3,000-4,000 रुपए के खरीदते हैं वो मैंने 50,000 के बेचे हैं, क्योंकि तब तक मॉडल था कि पैसे प्रिंटर से बनाने हैं। अब कार्ट्रिज से बनाने। हाँ, बाद में मॉडल हुआ कि प्रिंटर सस्ते कर दो और इंक कार्ट्रिज पे पैसे बनाओ। तो आपने ब्लू स्टार में 1 साल काम किया, वहाँ पे भी 1 साल तो काम, टोटल सेल्स में आपने 2 साल काम किया, 3 साल काम 2 ढाई 3 साल। सवा साल। नाउ क्या होता है, कोई बंदा सेल्स में करियर स्टार्ट करता है राइट अपना, वो उसके लिए मतलब विद टाइम यू स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। अब आप कस्टमर्स को बेच रहे हो, घूम फिर के आप एक ही चीज बेच रहे थे, घूम फिर के, करेक्ट। तो आपका कस्टमर का रिलेशनशिप भी बन गया। नाउ isn't it very tough to let it go and start afresh? नहीं, मतलब काफी लोग होते हैं because वो 24, 25, 26 साल के होते हैं, उन्होंने 3-4 साल लगा लिए होते हैं, उनको लगता है यार 3-4 साल लगा दिए, छोड़ूं नहीं छोड़ूं। तो बॉस वो छोड़ने का डिसीजन भी मतलब बाय चांस हुआ, ठीक है। तो वो कोई मतलब ऐसे डेलिब्रेट नहीं था कि अच्छा मैंने 3 साल सेल्स कर ली है मैं कुछ और करूंगा, इतना कोई प्लानिंग नहीं था, ठीक है। और लोग काफी बार करियर प्लानिंग की बात करते हैं। आई थिंक करियर प्लानिंग इज ओवररेटेड, ठीक है। आगे क्या होने वाला है किसी को कुछ मालूम नहीं, ठीक है। और आपकी मेहनत है, और बाकी फिर लक कह लो, डिवाइन ग्रेस कह लो, जो भी हो, दैट प्लेज अ रोल, ठीक है। अब जैसे जब मैंने MBA किया उसके बाद मैं IT इंडस्ट्री में लगा, ठीक है। अब लक ऐसा रहा कि IT इंडस्ट्री बिकेम अ बूम इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री फास्ट ग्रो हुई तो मेरा भी उसके साथ ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्री वेव के साथ। अब अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में मेरे को पहली जॉब मिल रही होती तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में चला गया होता। मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में उतनी ग्रोथ नहीं हुई उस समय, तो मेरा करियर अपने आप स्लो हो जाता, ठीक है। तो हार्डवर्क अलोन डजंट गारंटी एनीथिंग, ठीक है। तो आप ये कोई प्लान नहीं कर सकते हैं, आगे क्या होने वाला है वो हो जाता है, ठीक है। तो वो कोई प्लान्ड मूव नहीं था। तो मैं घर पे बैठा हुआ था। ब्लू स्टार में एक फायदा था, इट वाज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज दोस डेज जिनका 5 डे वर्किंग वीक होता था। अच्छा, तो सैटरडे संडे क्या होता था नॉर्मल कंपनीज का? सैटरडे भी काम करते थे, कम से कम हाफ डे तो करते ही करते थे, ठीक है। तो ब्लू स्टार में 5 डे वर्किंग वीक होता था। तो मैं सैटरडे को घर पे बैठा था, सुबह सुबह मैंने न्यूज़पेपर उठाया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो उनका जॉब एड्स का पेज था उसको मैं वैसे ही देख रहा था। तो उसमें एक एडवर्टीजमेंट था, मल्टीनेशनल बैंक लुकिंग फॉर पीपल विद 3 years एक्सपीरियंस इन सेल्स और इन अनदर मल्टीनेशनल। तो मैंने कहा यार 3 years सेल्स तो मेरा लगभग हो गया है, तो मैं ट्राई करता हूँ। अब मल्टीनेशनल बैंक लिखा हुआ था, सिटी नहीं लिखा हुआ, सिटी बैंक नहीं लिखा हुआ था। और उन दिनों क्या होता था कि जब हम MBA करते थे तो मल्टीनेशनल बैंक्स की जो जॉब्स होती थी उनको हम बोलते थे ग्लोरिफाइड क्लरिकल जॉब। अच्छा, तो वी यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन देम। रियली? हाँ, कहते थे थोड़ी तो एस्पिरेशन होगी, कोई एस्पिरेशन नहीं होती थी। वी यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन इट, सेइंग कि वहाँ वो पैसे अच्छे देते हैं लेकिन काम ऐसे ही है, मतलब क्लर्कों वाला काम है, कोई काम बहुत स्टिमुलेटिंग नहीं है। तो मैंने कहा मल्टीनेशनल बैंक है, जाना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो टाइम देख लेते हैं, वेला बैठा हूँ चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ चला गया आफ्टरनून में, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी उनका एडवर्टीजमेंट था। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने हाँ वो उस दिन वॉक इन था, मैंने वॉक इन किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप मंडे को ये, और उन्होंने बोल दिया सिटी बैंक है, तो उन्होंने कहा मंडे को आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो मैं मंडे को गया, वहाँ एक इंटरव्यू हुआ, फिर उन्होंने 3 दिन बाद और बुलाया। तो आई हैड अ फ्यू राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, ठीक है। एंड एवरी राउंड आई वाज गिविंग अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है, और मन में यही था कि ये तो ग्लोरिफाइड क्लरिकल जॉब है। तो फिर फाइनली वन डे उन्होंने कहा कि जी हमें सब ठीक लग रहा है, तो ये लीजिए ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर देखी तो वहाँ मेरी सैलरी डबल हो रही थी, ठीक है। तो अब मैं घर आया तो सैलरी डबल इज़ अ बिग थिंग, तो स्पेशली एट दैट जंक्शन। तो अब बड़ा मतलब वो था, कंफ्यूजन था कि मनी के लिए मैं ग्लोरिफाइड क्लरिकल जॉब करूं कि नहीं करूं। तो इतने में मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, तो क्लोज फ्रेंड था, उसको मालूम था कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ सिटी बैंक में। तो उसने पूछा वो क्या हुआ उसका। तो मैंने कहा यार वो ऑफर लेटर तो आ गई है। कहता अच्छा कितने पैसे दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार वो तो 5,500 रुपये दे रहे हैं। तो कहता अच्छा, तो फिर हाँ बोल दिया तूने। कहता नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ। तो कहता क्या सोच रहा है। मैंने कहा यार वो तो ग्लोरिफाइड क्लरिकल जॉब है। तो उसने कहा तो अभी कौन सा तू राजा बना बैठा है कहीं पे, अभी भी तो तू ब्रीफ केस लेके दरवाजों पे जाता है, नॉक करता है और कहता है कंप्यूटर खरीद लो, कंप्यूटर खरीद लो। इसमें क्या ग्लोरी है। तो ये एक बड़ा लेसन था मेरे लिए कि इफ यू वांट टू लुक डाउन अपॉन समथिंग तो आप किसी भी काम को छोटा बना सकते हो। सही बात, ठीक है। और मैंने सिटी बैंक ज्वाइन किया एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट करियर डिसीजंस आई मेड, बिकॉज सिटी बैंक वाज द ग्रेटेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड दैट यू कुड हैव जॉइंड। ठीक है। आज की डेट में 70% ऑफ माई कैपेबिलिटी, मे बी 80% एज अ प्रोफेशनल comes from the 9 years that I spent in Citibank. Really? Absolutely.
top 3 things you learned if you are just randomly asking. Top 2 or Ability 3. to take risks, entrepreneurial mindset, and using tech for creating business offerings. उस जमाने में टेक को यूज करने लग गए थे. सिटी बैंक वाज द ओरिजिनल फिनटेक. जिस तरह आज एक फिनटेक ऑपरेट करती है, सिटी बैंक इंडिया उन दिनों फिनटेक की तरह ऑपरेट करते थे. इन 1990 वी मेड अवर ओन कोर बैंकिंग सिस्टम. ये सिटी बैंक कौन से वाला है? बिकॉज जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग 2 सिटी बैंक ऑपरेट करते थे इंडिया में. एक वाज द मनी मार्केट्स वन जो इंडिया में एक्चुअली ऑपरेट करता था. द अदर वाज द कैप्टिव और द आईटी सर्विसेज. ये कैप्टिव नहीं था, ये मनी मार्केट वाला था. ये पूरा इट वाज नॉट जस्ट मनी मार्केट, कंज्यूमर रिटेल बैंकिंग, बैंकिंग. रिटेल बैंकिंग. तो कुछ था. तो कंज्यूमर बैंकिंग, सो सिटी बैंक, वेरी वेरी पावरफुल ना. सिटी बैंक revolutionized consumer banking in India, and I was part of that journey. So being part of that journey, तो और ये हर्षद मेहता स्कैम भी तभी हुआ था. ड्यूरिंग दैट पीरियड, लेकिन वो कॉर्पोरेट बैंक साइड में हुआ. अच्छा वो कॉर्पोरेट. हाँ. ओके. सो सिटी बैंक के अंदर आपका रोल कैसे डिफाइन हुआ? थोड़ा स्टार्टिंग क्या हुई और इवेंचुअली क्या हुआ? यार इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि हमारे पास 2 जॉब्स हैं, एक सर्विस में एक सेल्स में है, तो आप क्या प्रेफर करते हो? मैंने कहा जितने पैसे आप दे रहे हो उसमें जो काम बोलोगे मैं तो कर दूंगा. ठीक है. तो उन्होंने कहा अच्छा आप सर्विस में आ जाइए. सर्विस में उन्होंने बोला कि हमें ना पहली बार इंडिया में 24/7 सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द फोन. ठीक है. उन दिनों क्या होता था, बैंक 2 बजे बंद हो जाता था और 2 बजे के बाद अगर आपको बैंक के साथ कोई काम करना है तो नहीं हो सकता था. ठीक है. तो सिटी बैंक, और रेगुलेशन थी कि आप ज़्यादा खोल नहीं सकते थे ब्रांच 2 बजे के बाद. तो सिटी बैंक ने कस्टमर फोन बेस्ड सर्विस स्टार्ट की और कहा कि फ़ोन पे हम आपके कॉल सेंटर टाइप चला दिया. हाँ, उस समय कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी नहीं इम्प्लीमेंट हुई थी, तो मतलब ऐसे 4 फ़ोन लगे होते थे तो कॉल आती थी तो हम उठा लेते थे. ठीक है. सीरियसली. तो उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको शुरू में नाइट शिफ्ट कराएंगे. मैंने जी नाइट शिफ्ट कर लेंगे. एंड तो इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री में पहली रात की कॉल मैंने ली है. ठीक है. क्योंकि तो पहली शिफ्ट मेरी लगी थी जब हम लाइव गए, अखबारों में एडवर्टीजमेंट आ गए 24/7. बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे. बहुत बड़ी बात थी. 93 की बात है. 91. ओह. It took the whole country by storm. So for the first time after the bank closed, you could call up and find out your balance, do some queries, get some information. So you were attending calls at that. So I was attending calls at that. And these were, if I'm not wrong, Citibank के customers उस टाइम पे अब भी एक हमेशा क्वालिटी के लोग रहे. हाँ. तो आपका इंटरेक्शन विद दैट क्वालिटी काइंड ऑफ क्राउड यंग एज से स्टार्ट हो गया. बिल्कुल. और जो आज आप में एक फिनेस है, कुछ हद तक मुझे लगता है कि आप वहां पे इंस्पायर भी हुए, समझे भी ये बड़े लोग कैसे बात करते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, मतलब कम्युनिकेशन आपकी रिफाइन हो जाती है. Right. आप इट्स नॉट जस्ट बड़े लोग और छोटे लोग, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. I'm just trying to like, बट वैरायटी, Right. यू गेट एक्सपोज टू अ वैरायटी. Right. कोई अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, कोई उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल रहा, एंड दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद अ पर्सनस इकोनॉमिक प्रोफाइल. fair A poor person can also speak very good Right, English, right, and a right. multimillionaire can speak bad English. yeah, ठीक है. तो so it's nothing to do with the profile Sure, of the right, customer. right. You get exposed to different kind of people and interacting with them. तो वो कोई रीजनेबल लोग भी होते हैं, कोई अनरीजनेबल भी लोग होते हैं, कोई प्यार से बात करते हैं, कोई थप्पड़ मार के बात करते हैं. तो यू गेट एक्सपोज टू ऑल ऑफ. तो आपकी अगर सिटी बैंक की 9 साल की जर्नी है, आप कह रहे हो आपकी लाइफ में बहुत शेप किया. आई एम श्योर 1 या 2 लीडर्स रहे होंगे उस जमाने में सिटी बैंक ने जिन्होंने आपको इम्पैक्ट किया. अगर आप किसी एक लीडर का सिटी बैंक की उस जर्नी में नाम लेना चाहो, कौन होंगे वो लीडर? एक नाम तो बहुत मुश्किल है. 1 या 2-3 नाम जो भी. नंदन मेहर, हरित तलवार, अशोक दत्त. इन सब लोगों ने क्या कॉमन देखा आपने जो आपकी लीडरशिप स्टाइल को इम्पैक्ट किया? यार सीखता तो है ना. बहुत एम्पावर करते थे. इनसिक्योर नहीं थे. आप जितनी मर्जी गलती कर लो, रूल यूज्ड टू बी आप बड़े से बड़ा ब्लंडर कर लो, आके बोल दो कि जी मैंने ये कर दिया, आपके ऊपर मतलब कोई 5 सेकंड के लिए भी नहीं चीखेगा. सीरियसली. हाँ, आपने ब्लंडर किया, आपने आके बता दिया, वो कहेंगे अच्छा ये ब्लंडर हो गया, चलो आप बैठते हैं, इसको कैसे सुलझाना है, क्या करना है, ये इस पे फोकस होता था. एंड आपने अपनी लीडरशिप स्टाइल में डू ट्राई टू एमुलेट दैट. हाँ बिल्कुल. क्योंकि आई थिंक पॉजिटिव रीअफर्मेशन, एक इज्जत से बात करना सबको आई थिंक. और दूसरा मतलब आजकल मतलब बड़ा कॉमन है, सब कहते हैं हम बड़े कस्टमर फोकस्ड हैं. ठीक है. कस्टमर फोकस्ड होना बहुत मुश्किल काम है और बहुत कम कंपनियां एक्चुअली कर पाती हैं. एंड सिटी बैंक ऑफ द 90s वाज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे जेन्युइनली कस्टमर फोकस्ड थे. हाउ डू यू से जेन्युइनली थे या नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ. मतलब कोई मुझे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. अभी क्या हुआ कि हमारा एक क्रेडिट कार्ड का कस्टमर था, उसके ओवरड्यू चल रहे थे, पेमेंट नहीं कर रहा था टाइम पे. तो पहले किसी कलेक्टर ने उसको फ़ोन किया, उसने पेमेंट नहीं करी, 1 महीना और हो गया, फिर मैनेजर ने फ़ोन किया और डिले हो गया. तो फिर जो दिल्ली का रीजनल हेड था उसने उसके साथ बात की
और उनकी कुछ झड़प बड़प हो गई, इसने कोई तू मैमा हो गई, इसने कुछ शायद बुरा भला कह दिया, ठीक है। तो उस आदमी ने, जो हमारा क्रेडिट कार्ड्स का बिजनेस मैनेजर था, उसको कंप्लेन कर दी, ठीक है, बदतमीजी कर रहे हैं कि जी आपके योर रीजनल मैनेजर वाज रूड टू मी। उसने चिट्ठी लिख दी। तो चिट्ठी जब लिखी तो उसको, जब वो चेन्नई में बैठते थे तो चिट्ठी मिली, तो उस समय अनलकीली जो वो रीजनल मैनेजर दिल्ली के थे वो भी चेन्नई आए हुए थे, और मैं तब चेन्नई में ही बेस्ड था। तो वो बिजनेस मैनेजर बाहर आया, उसको बुलाया, कह रहा कि ये क्या है, कस्टमर कह रहा है कि यू आर रूड टू हिम। तो उसने कहा कि कौन कस्टमर है? तो इसने कहा कि जी ये नाम है। तो उसने कहा ये, कहता है ही इज़ अ बैड कस्टमर। उसकी उन्होंने क्लास ले ली कि हाउ डेयर यू रेफर टू अ कस्टमर एज बैड। तो उसने कहा जी उसने पेमेंट नहीं करी है 4 महीने से। कहता हो सकता है उसकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। जस्ट बिकॉज ही हैज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम राइट नाउ डज नॉट गिव अस द राइट टू कॉल हिम बैड। आप बैड और कस्टमर एक ही सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो हमारे एक नए बिजनेस मैनेजर आए थे, तो वो मैं उनको प्रेजेंटेशन कर रहा था। तो मैं उस समय दिल्ली में कॉल सेंटर चलाता था। नहीं, आप सिटी के अंदर इतना मूव किए हो? हाँ, हाँ। कहाँ मूव किए सिटी के अंदर आप? लोकेशंस दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, बैक टू दिल्ली, सिंगापुर एंड देन बैंगलोर। मस्त जिंदगी, 8-9 साल तो पूरा घूमे आप। मतलब हर एक साल में कहीं नई जगह शिफ्ट। अमेजिंग। हाँ। तो ऐसे ही मैं वो प्रेजेंटेशन कर रहा था, तो उसमें मैंने 2 सेट्स ऑफ डेटा मैंने प्रेजेंट किया। एक होता था प्रॉब्लम इंसिडेंट रेट, दूसरा होता था परसीव्ड प्रॉब्लम इंसिडेंट रेट। राइट। सो प्रॉब्लम इंसिडेंट रेट होता था, अगर आपकी 100 कॉल आई हैं तो उसमें से कितने कस्टमर्स की प्रॉब्लम थी, ठीक है। और परसीव्ड प्रॉब्लम होता था कि कितने लोगों ने प्रॉब्लम रिपोर्ट की लेकिन वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने ये प्रेजेंट किया। तो उसने कहा यार इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो मैंने बोला ये परसीव्ड है, ये एक्चुअली कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन कस्टमर को लग रहा है गलती हो गई है, और इसमें एक्चुअली हमसे गलती हुई है। तो मेरी क्लास लग गई। कहता अगर कस्टमर कह रहा है कि प्रॉब्लम है तो वो है, वो हमें सॉल्व करनी है। जी। तो अब मैं आर्ग्यू करने लगा। मैंने कहा अब जैसे कि आप ये कैसे कह रहे हैं, अब कई बार कस्टमर फोन करके कहता है कि आपने इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट किया, लेकिन हमने ठीक कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये तो परसीव प्रॉब्लम होगी ना। कहता नहीं, इसका मतलब है कि हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया ठीक से कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, या हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन इतना मुश्किल है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अगर आप इसको परसीव प्रॉब्लम करके टाल देंगे तो ये कभी सॉल्व नहीं की जाएगी। सही बात है। ठीक है। तो अगर कस्टमर कह रहा है प्रॉब्लम है तो इसमें अब कोई डिबेट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। वेदर इट इज बेटर कम्युनिकेशन, सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, जो भी है वो हमें करना है, कस्टमर को नहीं करना। तो इस तरह के मतलब मैं आप आई कैन गिव काउंटलेस एग्जांपल्स जहां मैं समझ गया। अब मैं समझ गया भाई, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। तो जब आप सिटी बैंक से आपका जब ट्रांजिशन हो रहा था 98, 97, 99 व्हाटएवर, वो एक आईटी सर्विस इंडस्ट्री के लिए पिवटल टाइम था। बीपीओ से आईटी सर्विस में मूव कर रहे थे, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोरीफाई हो रही थी। कुछ हद तक दिस Y2K थिंग हैड स्टार्टेड कमिंग अप। एकदम आई नहीं थी बट आने लग गई थी, लोगों को दिख रहा था कुछ होने वाला है। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे वो कोबोल्ट, वो सब वो एक नई चल रही थी। तो उस टाइम पे इंडस्ट्री में मैंने देखा कि कई लीडर्स ने, कई लोगों ने, यंग लोगों ने पिवटल शिफ्ट्स किए अपने करियर में। वो समझदार थे। और आई थिंक आपका भी एक हद तक कुछ शिफ्ट मेरे को लगा, शिफ्ट मतलब विद रिस्पेक्ट टू आप सिटी में सेट हो, बढ़िया चल रहा है, तब आप एक नया जर्नी में आते हो बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो इफ यू कुड गो बैक इन 98 राइट नाउ, 98, 99, कैसा माहौल था आईटी सर्विस इंडस्ट्री का? थोड़ा ब्रेक इट डाउन फॉर अस एंड थोड़ा बताओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। एक्चुअली 99 में अर्ली डेज थे, तो इट वाज स्टिल नॉट seen as a phenomenon. No, it wasn't phenomenon. It started appearing in 2002, 2003, 2004. अच्छा। हाँ, 99 में वो बड़ा मतलब US centric था. It was not glorified. It was not glorified as yet. The first BPO companies had come up. The first time IT companies had started scaling up. Some of them that were there at that time, big IT companies. I'm just want to know. Big IT companies, Infosys, TCS, ये सब थे वहाँ पे, ठीक है ना? तो ये अभी उतना बड़ा मतलब अट्रैक्शन नहीं था इसका, ठीक है। इसका बाद में अट्रैक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग 98, 99 में घुस गए थे उन्होंने स्टॉक ऑप्शंस वगैरह में बहुत पैसे बना लिए। तो जो 98, 99 में घुस गए वो 2004 में सब मिलेनियर बन चुके थे। अच्छा, ठीक है, सीरियसली? हाँ।
ओके तो एम्प्लॉय लेवल पे बढ़िया है। ओके तो उस समय वो प्रेडिक्ट करना कि यहाँ पे इतना करियर बनेगा, तो मैंने उस समय आई डिडंट मेक द शिफ्ट, आई मेड द शिफ्ट अ बिट लेटर। ठीक है, तो मैंने तो सिटी बैंक के बाद एबीएन एमरो में 4 साल निकाले सिंगापुर में। हाँ, you were based in Singapore? I was based in Singapore. With Citibank also I was based in Singapore for 2 years, and then I came back to India. And you must be like 31, 30, 38, 20, 28, 29 that time? When I left Citi and joined ABN AMRO? 28, 29? Yeah, I was about 29. Yeah. अब उस टाइम पे when you're young, आप एक सिंगापुर जैसी कंट्री में मूव किए, एंड उस टाइम पे इंडिया की डेवलपमेंट आज के मुकाबले बहुत कम थी, बहुत पीछे थी। इंडिया क्या खींच के लाया आपको वापस? बड़ा मुश्किल है ना, लोग एस्पायर करते हैं उस टाइम के उस जमाने में। मैं सिटी बैंक में सिंगापुर गया था, और इंडिया में उन्होंने दे वर प्लानिंग टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल बैंक। तब तो जो डिजिटल बैंक का हेड था वो मुझे सिंगापुर में आके मिला, और उसने कहा कि आपने पिछले 9 साल से सिर्फ डिजिटल का काम किया है, तो आपकी इंडिया में ज़रूरत है, आपकी सिंगापुर में ज़रूरत नहीं है। तो मैं उठ के इंडिया आ गया। तो बेसिकली आपको लगा जो आपका काम की वैल्यू है, इट विल हैव मोर वैल्यू इन इंडिया, दैट्स व्हाट इट वाज। अपॉर्चुनिटी टू मेक एन इम्पैक्ट इज हायर। परफेक्ट, यू नो। और मैंने उस समय सिटी बैंक में जो भी काम किया वो सारे फर्स्ट थे। आई सेट अप द फर्स्ट कॉन्टैक्ट सेंटर, फिर इंटरनेट आया तो पहला इंटरनेट बैंकिंग सोल्यूशन बनाया, फिर मोबाइल आया तो फर्स्ट मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन बनाया। ठीक है ना। तो ऐसे डिजिटल बैंक लगाना था, तो एज पार्ट ऑफ द टीम व्हिच सेट अप द फर्स्ट डिजिटल बैंक। वाओ। एंड देन 2004 के बाद क्या होता है? तो 2003 के आसपास मैं सिंगापुर में था, उस समय एबीएन एमरो बैंक में था। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सिंगापुर का नेशनल न्यूज़पेपर है स्ट्रेट टाइम्स बिहेव्स एज इफ इंडिया डजंट एग्जिस्ट उस टाइम। हाँ, अभी भी इंडियन न्यूज़पेपर्स बिहेव एज इफ साउथ ईस्ट एशिया डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन उन दिनों क्या हुआ, सिंगापुर के नेशनल न्यूज़पेपर में स्ट्रेट टाइम्स में एवरी ऑल्टरनेट डे समथिंग वाज गेटिंग प्रिंटेड अबाउट दिस बीपीओ रेवोल्यूशन एंड आईटी रेवोल्यूशन इन इंडिया। अच्छा, ठीक है। और आप पढ़ रहे थे? तो मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा यार ये तो इसमें तो सारा एक्सपर्टीज मेरा है, और रेवोल्यूशन इंडिया में हो रहा है और मैं सिंगापुर में बैठा हूँ। So I started scouting for opportunities in India, and when I got a good opportunity with Mphasis at that time, I moved back to India. And explain Mphasis to me at that time, how it was, what was the size of Mphasis? Mphasis was about $200 million in revenue. That's it? That's it. Wow. And you joined Mphasis as what? Initially as the chief operating officer of the BPO business, and then I became the president or head of the BPO business, till Mphasis got sold to ADS. तो आप आईटी सर्विस इंडस्ट्री में इतना रहे हो, आपका हेक्सावेयर का भी एक्सपीरियंस है और भी जगह एक्सपीरियंस है अभी भी। थोड़ा आप आईटी सर्विस इंडस्ट्री के बारे में मुझे ना एक चीज़ जाननी है आपसे कि जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, ये टैलेंट के दम पे इंडस्ट्री बनी, और टैलेंट एट स्केल की फ्रेशर्स को ट्रेन करके साइकिल चक्का चलाएंगे मोटे तौर पे। अब विद चैट जीपीटी, विद एआई, पीपल आर सीइंग वो जो एंट्री लेवल बल्क वाले काम थे, जो मैनुअल काम थे, टेस्टिंग वाले काफ़ी काम थे, काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो जो हमारी इंडिया की एडवांटेज थी हमारे पास कि हमारा इतना बड़ा पूल है, चाहे वो डी ग्रेड काम कर रहा हो, फॉर ऑल दैट आई केयर, उस चक्कर में हम एक इंडस्ट्री बना पाए। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या होगा इस इंडस्ट्री एवॉल्व करेगी। सी, टेक्नोलॉजी पिछले 50 साल से इट हैज बीन ऑटोमेटिंग थिंग्स टू मेक सिंपल थिंग्स पॉसिबल टू परफॉर्म सिंपल थिंग्स विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये सिर्फ आज का काम नहीं है, तो 50 साल से 100 साल से हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से यही स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी ये हुआ है, ह्यूमंस हैव रीइन्वेंटेड देमसेल्व्स, दे हैव रीस्किल्ड देमसेल्व्स, एंड दे हैव शिफ्टेड टू डूइंग रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स जॉब्स। ठीक है, तो अभी भी अगर जनरेटिव एआई से अगर आपका कोड जनरेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अच्छी बात है। जो लेबर वाला काम है वो ऑटोमेट हो गया, तो human beings will be able to do those things which require. I think the complexity of problems they solve will increase. That will increase the see, artificial intelligence को भी किसी ने गाइड करना है। ठीक है, तो अब वो घोड़ागिरी कम करेंगे और reins will be in their hands, so they will do higher quality work. Short term थोड़ा confusion रहेगा। शॉर्ट टर्म कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि चैट जीपीटी आल्सो टू बिकम मेनस्ट्रीम विल टेक सम टाइम, बट इट विल बिकम मेनस्ट्रीम पॉसिबली। व्हाट डू यू थिंक? सी, गट क्या कहती है आप? वो हार्ड टू प्रेडिक्ट है। अब जैसे ये तब भी गट तो है। आप, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ब्लॉकचेन आया जी, तो लोगों ने कहा जी पूरा दुनिया ब्लॉकचेन बन जाएगा। ठीक है,
अब ब्लॉकचेन थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन पूरी दुनिया ब्लॉकचेन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कंपेयर टू दैट जब क्लाउड आया तो लोगों ने कहा जी सब कुछ क्लाउड पे चला जाएगा, ठीक है। आज भी मेन फ्रेम से माइग्रेट कर, लेकिन वो फिर भी काफी एडवांस स्टेज पे है। मोर एंड मोर एवरी बिजनेस इज थिंकिंग ऑफ कि क्लाउड को कैसे अडॉप्ट करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। सो क्लाउड हैज बिकम मच मोर मेन स्ट्रीम देन व्हाट ब्लॉकचेन बिकम। बट क्लाउड में 10-12 साल लग गए, अभी भी कहाँ हुआ है। तो जनरेटिव एआई में भी whether it will become whether it's a blockchain moment or it's a cloud moment, that time alone will tell. And what is your gut saying? कुछ तो बोला। I think it's more of a blockchain moment. Really? Now that's what I want to know. Tell me, why do you think that? It's see, generative AI लोगों का जो एक्सपोजर है वो है चैट जीपीटी को देख के। तो चैट जीपीटी ने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो एक इंटरफेस है, उसमें आप डाल रहे हैं चीज़ें और निकल रहा है, ठीक है। उसके पीछे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत इंटेंस है। LLMs की बात कर रहे हो आप, किसकी बात? जनरेटिव एआई में कुछ भी आप ले लीजिए, इंक्लूडिंग LLMs। अब जैसे चैट जीपीटी है, आज की डेट में भी वो कहेगा कि द इंजन हैज बीन ट्रेन्ड अप टिल 2021. So why is it trained only up to 2021? Why isn't it current? Because the cost of keeping it for every day of training It's very expensive. is huge. ठीक है ना? तो so this is not something which every company can start developing their own models and start doing it. Because So they have started doing I think a lot of companies have started doing this. everyone has started figuring out how to use existing models and adopt it for themselves. ठीक है? Build their layer on top of that. Build their use case on it. Use case. ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैज स्टार्टेड, ठीक है। अब इसमें आप थिंग्स विल, अभी क्या हुआ था कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स पीपल हैड स्टार्टेड रिमूविंग टेस्टिंग एज अ फंक्शन। जैसे जो डेवलपर है वो खुद ही टेस्ट करेगा, ठीक है। नाउ इफ द कोड इज नॉट गोइंग टू बी जनरेटेड बाय अ डेवलपर, इट्स गोइंग टू बी जनरेटेड बाय जेन एआई प्रोग्राम, देन द टेस्टिंग फंक्शन विल कम बैक, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें थोड़ी इधर उधर होती रहेंगी, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू बिकम। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल में नौकरी उड़ जाएंगी। आई डोंट थिंक सो। Fair enough. And I think especially most of the jobs are for companies that are extremely compliant oriented, extremely regulated in industries like healthcare, BFSI. वहाँ पे वैसे भी वो नई चीज़ आने में अगर कितनी अच्छी हो, साल लग जाते हैं। हाँ, टाइम लगता है। अब जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड का अंडरराइटिंग का फंक्शन देखें, क्रेडिट इवैल्यूएशन, ठीक है, तो इसके लिए अगर आपने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, ठीक है। नाउ मशीन लर्निंग मॉडल बनाना तो बहुत रिलेटिवली आसान है। अगर आपके पास स्किल है तो आपने बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप यूएस क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में हैं तो यू हैव टू एंश्योर दैट द मशीन लर्निंग मॉडल डजंट हैव बायस, ओके। नाउ मशीन लर्निंग मॉडल बेस्ड अपॉन डेटा, इफ इट डिटरमाइंस दैट सैंपल क्या है वो, that women should have a lower credit rating than men, as an example, if data tells them that, that's the decision it will start churning out. लेकिन वो decision अगर आपने churn out किया, regulator आपको पकड़ लेगा। So your machine learning model आप बना रहे हैं, उसमें आपको bias निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि यूएस में और किसी भी डेवलप मार्केट में अगर आप किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं तो आपको उसको रीज़न देना है कि आपने क्यों रिजेक्ट किया, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते बस हमारी मर्जी थी हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको रीज़न देना है कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ, देन योर मशीन लर्निंग मॉडल ने जब रिजेक्ट किया है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि वो रिजेक्शन क्यों है, ठीक है। सो इन अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री, एज यू राइटली सेड, ये इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हर्डल्स आते हैं। सो अभी आप एम्फेसिस में काम कर रहे हो, एंड एम्फेसिस आई थिंक BPO, it was a BPO shop, if I'm not wrong. It was IT and BPO. I was running the BPO. Can you explain the difference between BPO and IT for our listeners? क्योंकि उन्होंने कभी BPO सुना ही नहीं काफी लोगों ने। यार BPO itself is business process outsourcing. It's a business process that is being managed, okay, and it's broadly divided into voice-based work or contact-based work versus back office work, okay. So back office work is where you are processing files, you are doing at the lowest level, you are doing data entry, and then you go higher up the value chain, you do rules-based decision, then you go higher up the chain, you make knowledge-based decisions, okay. So that's the back office side of it. And then there is a contact center side of it where you are answering calls, where you are answering chat requests, emails, letters. Yeah. So this is your BPO side. IT side is where you are developing software solutions, where you are managing infrastructure remotely, where you are designing systems. So that's the IT side. But the worlds coincide in some ways, right? In some form or the other. Not necessarily. I mean, the overlap is in the sense that BPO में आप जो भी काम करते हो उसमें आपको software tools use करने हैं। समझ गया। ठीक है, तो your productivity improvement comes from the software that is built. A lot of these BPO shops migrated to become IT services, right?
वो उनको लगा कि सी अगर सब चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं तो तो हमें आपका अपनी बीपीओ रेवेन्यू survival- कम होगा, हाँ, हाँ। ठीक है। तो फिर कंपनीज ने कहा कि अच्छा जब ऑटोमेट करना ही है तो हम ही ऑटोमेट कर देते हैं, तो ऑटोमेशन का रेवेन्यू आ जाएगा। सो विद एंड देन अब क्या है कि मोर एंड मोर ऑफ द बीपीओ वर्क इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑटोमेशन। अभी क्या है कि इन मोस्ट इंडस्ट्रीज देयर इज दिस फोकस कि कस्टमर जब कॉल कर रहा है वो क्यों कॉल कर रहा है, वो इसलिए कॉल कर रहा है क्योंकि कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम हुई है तो वाई डोंट वी फोकस ऑन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, उससे हमारा कॉल वॉल्यूम कम हो जाएगा, समझ गया। ठीक है। अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए आपको आईटी इंप्रूव करना है, ठीक है। सो इट इज लिंक्ड। सो नाउ बीपीओ कंपनी कैन से दैट बिकॉज आई एम टेकिंग द कॉल्स I can analyze these calls and go back to the client and say कि now give me some IT work because I'll remove the underlying reason for why the customer is calling. तो जो अभी करंटली बीपीओ इंडस्ट्री इंडिया में एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। क्या और उसके कैसे प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं फ्यूचर में आपको? It will keep growing. सीरियसली? Of course, of course. The quantum of work will keep increasing. ठीक है ना। See, इसमें क्या है कि ये नॉलेज बेस्ड काम है और इसमें जो ग्रंट वर्क है, जो डेटा एंट्री टाइप काम था जिसमें दिमाग नहीं लगता, दैट इज रिड्यूसिंग, वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, डेटा दिखाता है। लेकिन हायर एंड वर्क इज इंक्रीजिंग, ओके। एंड जस्ट एज चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द सर्विसेज कैपिटल ऑफ द एंड ये वर्ल्ड। जो ग्रोथ आ रही है ये कि अमेरिकन अकाउंट से आ रही है, यूरोपियन अकाउंट से आ रही है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एपैक से भी आता है, यूरोप से भी आता है, नॉर्थ अमेरिका से भी आता है। गॉट इट। सो एम्फेसिस जब आपने ज्वाइन किया, आप बोल रहे $200 मिलियन की कंपनी थी, जब आपने छोड़ा तो कितनी बड़ी कंपनी थी? 3 साल में और मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो 180 थी, जब मैंने छोड़ा 270 275 मिलियन की हो गई थी। देन वेयर डिड यू गो आफ्टर एम्फेसिस? देन आई वेंट टू सेपिएंट। अच्छा, Publicis ने तो बाद में एक्वायर किया, उस समय सेपिएंट वाज अ ओके, स्टैंडअलोन फर्म। हाँ। नाउ सेपिएंट वाज प्योरली इनटू मार्केट इंटेलिजेंस एंड It was a IT सर्विस। IT, it was a, so Sapient was a IT company but with a difference. So Sapient was the company which showed the world how to bring creative and design and IT together as an integrated offering. तो क्या होता था, before Sapient started doing this, अगर कोई कस्टमर है उसको अगर क्रिएटिव काम कराना है, जब वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट का क्या पर्पस होना चाहिए, उसके लिए कंसल्टिंग एडवाइस के लिए दे वुड गो टू अ कंसल्टिंग फर्म। उस वेबसाइट का लुक एंड फील क्या होना चाहिए, उसके लिए वो अपनी एडवर्टाइजिंग फर्म के पास जाते थे। फिर उसका जो डेवलपमेंट है वो आईटी कंपनी से कराते थे। तो एक ही इन्होंने बना दिया। सेपिएंट ने कहा हम ही कंसल्ट करेंगे, हम ही डिज़ाइन बनाएंगे और हम ही उसका डेवलपमेंट भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि उससे क्या है कि बाय हैविंग इट ऑल अंडर वन रूफ देयर इज नो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ठीक है। अब नहीं तो क्या होता है कि एड एजेंसी में जो डिज़ाइन बना रहा है उसने डिज़ाइन तो बना दिया बट ही डजंट नो वेदर इट इज़ फीजिबल फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव और नॉट। सेपिएंट में हमने कहा कि हम अपने क्रिएटिव लोगों को टेक पे भी ट्रेन करेंगे सो दैट दे नो कि अगर हम कोई क्रिएटिव डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो टेक से इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। या हमें मालूम है ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है तो इसको क्रिएटिवली कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। सो दे वर बेनिफिट्स इन ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर। सो व्हेन यू वर इन सेपिएंट दैट टाइम उनका मर्जर नहीं हुआ था? Publicis तो acquired Sapient many years later. Many years later. Now, if I had to ask you Sapient के बारे में, this was not an Indian company, obviously. Not an Indian company. And before this, you were in an Indian company. Difference क्या होता है? दोनों है IT सर्विसेज, इंडस्ट्री सेम है, बट अगर एक अगर प्रमोटर इंडियन हो, आपने दोनों टाइप की कंपनीज में होंगे, मैं जेनरिक पूछ रहा हूँ, नथिंग स्पेसिफिक टू दिस कंपनीज। जब डीएनए प्रमोटर का इंडियन होता है वर्सेस जब डीएनए इंडियन नहीं होता है ना आईटी सर्विस कंपनी, आपने डिफरेंसेस क्या देखे? I don't think there is any difference based upon the DNA. No. I mean of the ethnicity. आपको माइंड फ्रेम की बात करो। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आपको प्रोग्रेसिव लिबरल रिस्क टेकिंग लोग मिलेंगे, ठीक है, इंडिया में भी मिलेंगे। यूएस में भी आपको कंजर्वेटिव नॉन रिस्क टेकिंग प्रोफाइल मिल सकता है, इंडिया में भी मिल सकता है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिस्टिंक्शन। आई हैव वर्कड इन इंडियन फर्म्स व्हिच आर हेवीली अमेरिकनाइज्ड। एम्फेसिस वाज extremely Americanized, okay, because Emphasis में हमारा belief था that if we are doing work for American clients predominantly, then we need to understand their culture. We need to understand what the American consumer thinks, how they what they appreciate, what they don't appreciate. ठीक है? So a lot of our training was to understand the American culture. ठीक है? So Sapient आप किन years में थे? 2007 2008. हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था। एंड आपका जॉब टाइटल क्या था वहाँ पे? I was the MD for India
and the global head of delivery. मतलब P&L आपका था, P&L shared P&L होता shared P&L, मतलब revenue and all of that was your thing into your. है, shared और responsibility. वो 2007-8 में हमें पता है क्या हुआ, क्राइसिस हुए, तो आपने उस टाइम पे कैसे मैनेज किया? बिकॉज एज अ लीडर एट दैट टाइम ना कंपनी आप ज्वाइन करते हो और वो हो जाता है. See, जब भी कोई क्राइसिस होता है, क्राइसिस से क्या होता है, आपका रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है, हाँ. ठीक है, Bottom योर line रेवेन्यू इज तो- अंडर थ्रेट. दोनों चीजें. Revenue is under threat, so what you have to do is you have to make sure during that period how do you protect the bottom line. समझ. तो फोकस ऑन एफिशिएंसी इंक्रीजेस. जिस समय अगर आपकी रेवेन्यू 25% ग्रोथ हो रही है तो साल फर्क के नहीं साथ, तो एफिशिएंसी पे उतना फोकस नहीं होता है. तो योर फोकस शिफ्ट्स एंड इन दैट सेंस दीज रिसेशंस और दीज टफ टाइम्स आर यूजफुल, क्योंकि आपकी Cut the कंपनी fat. एफिशिएंट बन Cut जाती the है. fat. हाँ, तो फिर जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो आपकी वैसी एफिशिएंसी बढ़ गई होती है, तो इट्स अ गुड थिंग टू हैपन. Yeah, when I talk to some of these, industrialists and all of them, and अभी ये रिसेशन हो रहा है, एक हवा है, तो वो तो कहते हैं जो हवा होती है इसका सबसे ज़्यादा फायदा बिजनेस को होता है. बिकॉज इस टाइम पे जो अभी ले ऑफ्स हम सुन रहे हैं, कंपनी को जरूरत भी नहीं हो तब भी कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है जो अभी माहौल है, सेंटिमेंट है, नो वन विल माइंड इट. बुल रन में आप ले ऑफ नहीं कर सकते. करेक्ट. If you know what I mean. So I think makes sense. So after Sapient, what happens? आफ्टर सेपिएंट आई जॉइंड टेस्को, व्हिच इज अ ब्रिटिश रिटेलर. तो वहाँ पे 5 साल रहे, 4.5 साल. 5.5 साल रहे. तो वो ग्लोबल जेसीसी था, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, तो आई वाज द सीईओ फॉर दैट. तो Probably at that time, from Sapient to getting to Tesco, I'm just trying to think of it. At a role level, थोड़ा मतलब गेम थोड़ा एक लेवल एकदम से चेंज नहीं हो गया, बिकॉज टेस्को में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, द टीम साइजेस, द स्ट्रक्चर, द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर मच बिगर. वेल, टीम साइज वाज स्मॉलर स्मॉलर टू स्टार्ट विद. तो Okay. जब मैंने सेपिएंट छोड़ा, सेपिएंट में करीब 6,000 लोग थे. 6,000 इंडिया में? 6,000 ग्लोबली थे, उनमें से 4,500 इंडिया में थे. रियली? तो वाओ. तो टेस्को मैंने जब ज्वाइन किया तब वहाँ 2,000 ऑड पीपल. राइट, राइट. ठीक है ना. तो व्हेन आई लेफ्ट टेस्को इट वाज 7,500 पीपल, सो इट ग्रो. वाओ. ओके, बट सो सी ऐसा है कि करियर में लोग है ना हमेशा करियर के साथ ग्रोथ वर्ड यूज करते हैं. एवरीवन थिंक्स ऑफ करियर इन टर्म्स ऑफ मेरा करियर में ग्रोथ कैसे होगा. कितने लोग मैनेज कर रहा हूँ, P&L कितना बड़ा है. तो ग्रोथ का मतलब है आज मैंने 10 मिलियन मैनेज किया, 2 साल बाद मुझे 50 मिलियन करना है, फिर मुझे 100 करना है. ठीक है, ऐसे ही आज मेरी 50 लोगों की टीम है, फिर 100 करना है, फिर 200 करना है, 500 करना है. तो इसमें इसमें इस जर्नी में स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर लार्जर. ओके, एंड लार्जर डजंट नेसेसरली मीन बेटर. ओके, तो माई बिलीफ इज करियर शुड बी लुक्ड एट एज collecting diverse experiences. So if you collect diverse experiences, okay, your ability to think holistic strategy, your ability to understand different kinds of industries, different elements of it, that increases. ठीक है ना. तो वो एक फोकस होना चाहिए कि मैं मतलब अगर आपने 6 महीने ब्रेक लेके आप माउंटेनियरिंग करने गए हैं, दैट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस. अगर आपने साइड में थिएटर ज्वाइन कर लिया और आप एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस. ऑल दीज थिंग्स एड टुगेदर. ठीक है ना. तो लाइफ में ना डाइवर्सिटी होनी चाहिए. ओके, और ये डाइवर्सिटी कई बारी नेचुरली आती नहीं है. ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं सिंगापुर 2 बार गया. एक बार सिटी बैंक के साथ गया, एक बार एबीएन एमरो के साथ था. जब सिटी बैंक के साथ गया तो सिटी बैंक इंडिया से ट्रांसफ़र होकर गया. तो जब वहाँ पे गया तो वहाँ पहले से ही सिटी बैंक इंडिया से और भी लोग जा चुके थे. तो ऑल माय फ्रेंड्स कंटिन्यू टू बी इंडियंस. ठीक है, ऑफिस लिटिल इंडिया के पास था, तो सिंगापुर में एरिया लिटिल इंडिया जहाँ पे, तो रोज़ लंच करने वहाँ जाते थे. मुस्तफ़ा वगैरह भी. तो वहीं सरवना भवन में रोज़ खाना खाते थे. तो खाना भी इंडियन खा रहे थे, और वहाँ मुस्तफ़ा में इंडियन म्यूज़िक भी मिलता था, इंडियन मूवीज़ भी मिलती थी. तो वो 2 साल जब मैं रहा तो मैं सिंगापुर में एक इंडियन की तरह ही रहा. तो जो एक एक्सपोजर मिलना चाहिए नए कंट्री में जाने का, उसका मैंने कोई एडवांटेज नहीं लिया, बिकॉज आई वाज इन माय कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन वाज इंडियन आई फील यू, बिकॉज़ आई हैव स्टडीड इन द यूएस एंड सेम चीज. हाँ, तो इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन फूड, सेम चीज. फिर मैं वापस आया, फिर मैं दोबारा सिंगापुर गया. अगेन आई स्टार्टेड लिविंग इन द सेम मैनर. तो लकीली क्या हुआ कि इन द नेक्स्ट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स एक दिन हमारे एम्स्टर्डम से हेड ऑफिस से 2 सीनियर लोग आए. तो दिन में उनके रिव्यू वगैरह हुए, तो शाम को उनको हम डिनर पे ले गए. तो डिनर के लिए वी वेंट टू अ ट्रेडिशनल चाइनीज़ सी फूड रेस्टोरेंट. ठीक है,
और उसमें उस रेस्टोरेंट में क्या होता है कि आप सिर्फ ऑर्डर करते हैं कि आपको 7 कोर्स मील चाहिए कि 8 कोर्स चाहिए कि 9 कोर्स चाहिए, तो फिर वो एक सेट मेन्यू होता है, तो एक एक करके चीज़ें आती रहती हैं। तो हम फैंसी रेस्टोरेंट फैंसी रेस्टोरेंट है, तो 10-12 लोग हम बैठे हुए थे, तो उनमें वो 2 डच थे, मैं इंडियन था, एक पाकिस्तानी था, बाकी सब सिंगापुरियन थे। तो मतलब चाइनीज़ एक आध मलय होगा, बट लोकल थे, ठीक है। तो खाना स्टार्ट हुआ तो पहले वो शार्क फिन सूप लेकर आए, तो मैंने कहा भैया आई डोंट ईट शार्क फिन सूप। तो एक सज्जन ने गलती से पूछ लिया कि क्यों नहीं पीते हो, तो मैंने उसको बताया कि मतलब शार्क्स के साथ बड़ी ज़्यादती होती है, वो डीप सी में उनका फिन काट दिया जाता है और फिर बिकॉज द फिन इज़ द ओनली टेस्टी पार्ट, बाकी शार्क को फिर सी में वापस फेंक दिया जाता है बिकॉज दे डोंट वांट टू लग द एंटायर शार्क बैक। तो ये बड़ा गलत है और मैं इसके बड़ा अगेंस्ट हूँ, वो ठीक है। अब वो बेचारे सूप पी रहे थे, मैं उनको ये खून खराबे की बातें सुना रहा था, तो काफ़ी स्ट्रेस वगैरह हुआ, तो बड़े चुपचाप सबने सुना। तो खैर वो हो गया और मैं बड़ा खुश कि मैंने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया लोगों को। तो उसके बाद फिर प्रॉन्स आए, मैंने कहा जी मैं प्रॉन्स नहीं खाता। अब की बार किसी ने पूछा कि भैया आप प्रॉन क्यों नहीं खाते, किसी ने हिम्मत नहीं की, उनका ये एक और स्टोरी सुनाएगा, तो सबने प्रॉन खाए। फिर लॉबस्टर आया, मैंने कहा मैं लॉबस्टर नहीं खाता। फिर क्रैब आया, मैंने कहा क्रैब नहीं खाता। तो ऐसे चीज़ें आती रही, मैं हर चीज़ में कहता रहा मैं कुछ खाता नहीं। तो डिनर ख़त्म हो गया, मैंने कुछ खाया नहीं, लेकिन आई वॉज ओके, ठीक है, मैंने कुछ नहीं खाया। तो अगले दिन जब मैं ऑफिस गया, तो जो वो पाकिस्तानी साथ में था, तो अच्छा दोस्त था, तो मेरे से मिला आके और कहता है संदीप कैन आई गिव यू सम फीडबैक। हाँ जी दो। तो कहता है येस्टरडे एट डिनर यू वर एन एम्बैरसमेंट। तो मैं क्या मतलब आपका, क्या एम्बैरसमेंट? कहता है यू डिडंट ईट एनीथिंग। ऐसे थोड़ा ना होता है, आप मतलब एक मल्टीकल्चरल ग्रुप में गए हो, आप कुछ खा नहीं रहे हो। तो मैंने कहा बट यू पीपल ऑर्डर्ड थिंग्स व्हिच आई डोंट ईट। तो कहता क्यों नहीं खाते हो? कहता है मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, आप हिंदू हो, आप बीफ नहीं खाओगे, आप कह सकते हो जी मैं बीफ नहीं खाता, बाकी चीज़ तो खाओ, ट्राई तो करो। तो मैंने कहा जी मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। कहता कैसे मालूम अच्छा लगता है, कभी प्रॉन खाए हैं? मैंने कहा नहीं। कभी क्रैब खाया? मैंने कहा नहीं। तो कहता फिर कैसे मालूम आपको कि अच्छा नहीं लगता आपको? कहता ट्राई करो, फिर बोलो कि हाँ मैंने प्रॉन ट्राई किया हुआ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे उसकी बात में कुछ दम लगा, तो फिर मैंने जाके 1-2 दिन बाद रेस्टोरेंट में जाके प्रॉन खाए, अकेले? साथ में कोई था, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर थोड़े दिन बाद मैंने क्रैब खाया तो बहुत ही मज़ा आया, ठीक है। फिर लॉबस्टर खाया, मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मेरा पहला जो चेंज हुआ, मेरी जो फूड हैबिट्स थी वो एकदम डाइवर्स हो गई, और जब फूड हैबिट्स डाइवर्स हुई तो अब मेरा माइंड ओपन अप होने लग गया। सो नाउ आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज़, और सिंगापुर इज़ अ वेरी मल्टीकल्चरल काइंड ऑफ अ प्लेस, लोग दुनिया भर से आते हैं वहाँ रहने के लिए, काम करने के लिए। तो मेरे अब अलग अलग तरह के दोस्त बनने लगे, अब मैं अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने लगा, अब मैं अलग अलग तरह का म्यूज़िक सुनने लगा, ठीक है। तो दैट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन माय लाइफ, बिकॉज फ्रॉम अ वेरी ऑब्स्टिनेट यूनिडायमेंशनल पर्सन I slowly started evolving into a multi-dimensional, holistic, non-judgmental kind of a person. तो ये very nice anecdote. And then आप Goldman Sachs जाते हो. This is 2014. Goldman Sachs was much more recent. It was 2020. So between that where were you? Hexa? टेस्को के बाद मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। अच्छा, क्या था ये? हॉस्पिटैलिटी स्पेस में था, स्टेओलॉजी करके हमने स्टार्ट किया था, 2 पार्टनर्स साथ में लेके, एंड वी वर ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरिएंट ऑफ एयरबीएनबी फॉर इंडिया। अच्छा, दिस कब की बात है? ये 2014 की बात है। वाओ। तो वो 1-2 साल ट्राई किया। तब फ्लिपकार्ट वगैरह ने $1 बिलियन उठाए थे, एकदम स्टार्टअप का एक थोड़ा रश आ रहा था कंट्री में। हाँ, काफ़ी रश आ चुका था, तो मैच्योर इंडस्ट्री थी। तो उस समय वो 2 साल ट्राई किया, नहीं चला, फिर बंद कर दिया। बिगेस्ट लर्निंग क्या थी? बिगेस्ट लर्निंग थी यार, हमने इन्वेस्टमेंट उठाने में देर कर दी। तो क्यों देर क्यों की? हम ये सोचते रहे कि अगर हमने अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट ले ली तो डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हमने कहा हम पहले इसको थोड़ा खुद ही का पता लगा के, हाँ, बूटस्ट्रैप करके इसको बड़ा बनाते हैं। हाँ। तो उस समय क्या हुआ कि कंपनीज लाइक ओयो रूम्स सडनली गॉट फंडेड विद $100 मिलियन। सॉफ्टबैंक आ गया था उनमें। सॉफ्टबैंक आ गया, तो वी गॉट आउटरन, ठीक है। अगर हमने भी शुरू में ज़्यादा पैसे उठा लिए होते
तो शायद हमारी भी स्टोरी थोड़ी अलग होती। तो लर्निंग उसमें ये है कि ज़्यादा लालच नहीं करो ठीक है, स्टार्टअप कर रहे हो तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और जिस समय मिल रहे हैं पैसे ले लो। आई थिंक वही ना, साइज एंड स्लाइस ऑफ द पाई। करेक्ट। साइज बड़ा होना चाहिए पाएगा, चाहे स्लाइस आपका छोटा भी हो। तो अगर आपने पहले स्लाइस ज़्यादा दे दिया, कोई बात नहीं, बाद में केक बड़ा बन जाएगा। And if you look at most of the bigger companies in the world, promoter holding is less than 10%. Correct. That should be one example Correct. for us to know what is going on. So yeah, apart from Wipro वो तो एक अलग तो दुनिया में हर मॉडल है, हर मॉडल। ठीक है, आप वो चॉकलेट खाते हैं ये मार्स वगैरह, प्राइवेटली है, ठीक है ना। तो हर तरह का मॉडल है वर्ल्ड में। तो ये आपने 2 साल स्टार्टअप चलाया अपना, एंड आपके कोई को-फाउंडर्स भी थे? हाँ, 2 और को-फाउंडर थे। तो जब को-फाउंडर आप ढूंढते हो या कोई भी बंदा ढूंढ रहा है अपने को-फाउंडर्स, व्हाट शुड दे लुक फॉर इन देयर को-फाउंडर्स? यार वैल्यूज मैच, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो स्किल्स शुड बी डाइवर्स, स्किल्स शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर किसी का डोमेन नॉलेज है, किसी का टेक में नॉलेज है, किसी का ऑपरेशन नॉलेज है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो अगर तीनों के स्किल एक जैसे हैं तो क्या फ़ायदा फिर, तो यू नो देयर इज़ नो बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो स्किल्स कॉमन होने चाहिए, और आपका कल्चरल मैच होना चाहिए। कल्चरल मैच जमाना, मतलब वो थोड़ा आई थिंक दोस्ती से भी आता है, दोस्तों का खोलना कंपैरेटिवली आसान होता है। हाँ, आपने दोस्तों का खोला? दोस्त थे आपके? दोस्त थे मेरे, तो दोस्तों के साथ ईजियर होता है, क्योंकि आप समझते हो एक दूसरे को, और आपका हिस्ट्री है, तो दैट इज़ यूजफुल। तो स्टार्टअप खोल के व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, देन इवेंचुअली गेटिंग बैक इनटू अ जॉब, अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो ट्रांजिशन क्या था? वो काफ़ी टफ था। वही मैं पूछ रहा हूँ। वो काफ़ी टफ था फॉर कपल ऑफ रीजंस। ओके, एक तो ये है कि पर्टिकुलरली इन इंडिया, अगर आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ब्रेक ले लिया तो आपको बड़ी शक की नज़र से देखा जाता है। क्यों छोड़, टेस्को में सीईओ था, क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, यू नो। तो इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन वही हो रहे होते हैं कि आप क्यों छोड़े। वो ऐसे क्रॉस एग्जामिन करने लगते हैं कि जैसे मतलब आप कटहरे में खड़े हैं, ठीक है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि ये क्या कहते हैं इसको, मेरी 50 एज क्रॉस हो चुकी थी। 50 के बाद इंडस्ट्री में एज डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। लोग माने या ना माने, माई बिलीफ इज कि पीपल वांट एट सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल, व्हेन पीपल आर लुकिंग, दे आर लुकिंग फॉर पीपल इन देयर मिड टू लेट 40s, ठीक है। तो 50 के बाद लोगों को लगता है यार थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाला भी काम कर लेगा, पैसे भी कम लेगा, तो उसको ले लेते हैं। तो दैट्स द सेकंड प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम ये आई कि मतलब मैंने टोटल 3 साल का ब्रेक था, 2 साल उसमें स्टार्टअप था और भी थोड़ा फ्रीलांसिंग वगैरह किया। तो 3 साल का ब्रेक था। 3 साल में यार आई रियलाइज दुनिया कितनी चेंज हो जाती है। अच्छा। तो एक बिग 4 कंसल्टिंग कंपनी है, वहाँ मेरा इंटरव्यू वगैरह चल रहा था, पार्टनर के लिए। हाँ, बड़ी अच्छी पोजीशन थी और ग्लोबल रोल था, इंडिया बेस्ड। तो एवरीवन वाज लाइकिंग मी, बड़े अच्छे इंटरव्यू हुए ये वो। फाइनली उन्होंने कहा कि जो हमारा ग्लोबल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उसके साथ आपका एक फाइनल इंटरव्यू है। मैंने कहा अच्छा, और उनका कोई टेंशन की बात नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट डन, ये तो वैसे मीट एंड ग्रीट है। तो ठीक है, तो उसके साथ इंटरव्यू हुआ। तो उसने थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, फिर उसने कहा व्हाट डू यू थिंक अबाउट आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो जब मैंने टेस्को छोड़ा था, आरपीए का कहीं नामो निशान नहीं था। ओके, और 3 साल में मैं अलग चीज़ों में लगा रहा, इतने में आरपीए हैड बिकम अ बिग थिंग। मैंने आरपीए के बारे में सिर्फ एक जगह ब्रीफली एक आईटी सर्विसेज कंपनी से सुना था, वो कह रहे थे वी आर बिल्डिंग एन आरपीए कैपेबिलिटी। मैंने कहा आरपीए क्या होता है, उन्होंने कहा ये रोबोटिक, तो मुझे लगा ये ऐसे ही उल्लू बनाने के लिए कुछ है, ये रोबोट्स तो अलग होते हैं क्या, सर्विस में क्या कोई नया बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसने मुझसे पूछा कि क्या है सोच, क्या मैंने कहा जी बिल्कुल बकवास चीज़ है, तो ऐसे मैक्रोज हैं, हम तो मैक्रोज 20 साल से लिख रहे हैं, ये तो इसमें कोई नहीं है। तो उसने कहा नो बट इट्स यू नो बिग रेवोल्यूशन, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, ऐसे कोई कुछ नहीं है। उसने जाके अपने बाकी लोगों से यार तुम कैसा बंदा लेकर आए हो, तो कह रहा है जी आरपीए बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो फिर मैंने जब कैपजेमिनी ज्वाइन की, वहाँ फिर मैंने जाके देखा आरपीए कितनी बड़ी चीज़ है, हर कस्टमर कह रहा है आरपीए। और हमने 1 साल में 500 लोगों की आरपीए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वी हैड 500 पीपल हु ओनली डिड आरपीए। व्हिच टूल, व्हिच सॉफ्टवेयर? एवरीथिंग। 500 लोग हैं तो आप यूआईपाथ भी करेंगे, ऑटोमेशन एनीवेयर भी करेंगे, ब्लू प्रिज्म भी करेंगे, जॉन्डर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये बड़ी लर्निंग थी कि अगर आप इफ यू आर नॉट इन टच विद कि क्या हो रहा है, चीज़ें बड़ी जल्दी चेंज हो जाती हैं। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी इन टच विद
क्या नया टूल आ रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है. अब आप कैसे रहते हो कॉन्स्टेंटली इन टच, इवन दो यू आर वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री ऑब्वियसली, बट स्टिल इंडस्ट्री इज वे ब्रॉडर देन व्हाट यू आर वर्किंग. यार सो हाउ डू यू कीप जिस इंडस्ट्री में आप हो उसमें तो इट्स ईजियर टू स्टे इन टच. ठीक है, अब जब मैं स्टार्टअप कर रहा था तो मुझे हॉस्पिटैलिटी की बड़ी नॉलेज थी. ठीक है, अब क्योंकि मैं इस साइड में लगा हुआ तो आई एम श्योर हॉस्पिटैलिटी में जो हो रहा है लेटेस्ट आई विल फॉल एक बिहाइंड. या दो चीजें आपने हॉस्पिटैलिटी के बारे में सीखी हो जो नॉर्मल आदमी को नहीं पता होंगी? अगर मुझे लेट से बिजनेस स्टार्ट करना है हॉस्पिटैलिटी में, एक या दो लर्निंग्स आपकी लर्निंग से मैं ले सकूं. यार कस्टमर एक्सपीरियंस की कंसिस्टेंसी बनाना इज वेरी डिफिकल्ट. प्रेडिक्टेबिलिटी. हाउ डू यू मेक श्योर दैट एवरी कस्टमर एक्सपीरियंस इज ग्रेट. आप दुनिया में हॉस्पिटैलिटी का कोई भी ब्रांड ले लीजिए, स्केलेबल मुश्किल है, बहुत ठीक है, स्केलेबल. बड़े से बड़ा अगर आप रिट्स कार्ल्टन भी लेते हैं, आपको कोई ना कोई लिंक्डइन पे कस्टमर मिल जाएगा जो कह रहा होगा जी मैं रिट्स कार्ल्टन गया, बड़ा पुअर एक्सपीरियंस था, ये था. 100%. ठीक है ना. तो इवन द बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ब्रांड्स आर नॉट एबल टू डिलीवर इट 100%. consistently. And if anyone in hospitality can crack that, they will create a brand where they can charge anything that they want. Wow, that's a big one. और वो एक्सपीरियंस चैट जीपीटी, एआई, एमएल वगैरह उससे नहीं आएगा, क्योंकि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. कस्टमर आ रहा है, आपने उस समय उसको कैसे इंटरेक्ट किया उसके साथ, दैट्स अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ. उसमें कस्टमर खुश हो गया तो खुश है, खुश नहीं हुआ तो आपको 10 पॉइंट स्केल पे 0 दे देगा. आपका वो सोशल मीडिया में जाके नेगेटिविटी फैलाएगा सबका. देन अब आप आईटी सर्विसेज हेक्सावेयर में भी आप हो एंड यू आर इन कैपजेमिनी आल्सो, एंड देन यू गेट इनटू गोल्डमैन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दैट्स राइट. नाउ सर्विसेज से नाउ अगेन बैक टू कैप्टिव की क्या जर्नी थी? ये क्या कोई रीजन था या? This is not growth. This is collecting a bunch of experiences. So Goldman Sachs was building, a great consumer banking franchise. And I said, yeah, this is history in the making. I want to be part of it. So, and we did create history. If you take Apple Card today, it's one Game of its changer. kind. Game changer. At a time when everyone thought that credit card is commoditized and nothing new can be done in पूरा credit game बना cards, दिया. we created a distinctly different experience. एंड मार्केटिंग भी उसकी बड़ी अलग थी. हाँ. वो मेटल का जो कार्ड था वो Correct. वो आप एमएक्स का प्लैटिनम कार्ड जो था उससे भी मतलब बेटर फील थी उसकी. नॉट ओनली दैट, वो जो बाय डिफॉल्ट जब आप एप्पल कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फिजिकल कार्ड नहीं मिलता है, बिकॉज इट्स डिजाइंड एज अ डिजिटल एक्सपीरियंस. या ओनली इफ यू से दैट नो आई वांट टू ट्रैवल ओवरसीज और मुझे फिजिकल कार्ड की जरूरत है, फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं तब फिजिकल कार्ड आता है. सो द ब्यूटी इज नॉट इन द फिजिकल कार्ड, द ब्यूटी इज इन द डिजिटल एक्सपीरियंस. राइट. क्योंकि वो तो गेम चेंजर. थोड़ा उसके बारे में बताइए कि एप्पल के साथ कोलैबोरेट किया आपने गोल्डमैन के अंदर, थोड़ा एनीथिंग इफ यू कैन, बिकॉज़ आई नो देयर आर लॉट ऑफ कंप्लायंस एंड ऑल दैट, कुछ भी आप एक्सपीरियंस जो पब्लिक नॉलेज में हो. यार बेसिकली फोकस ये था कि हाउ डू वी सिंप्लीफाई द बैंकिंग एक्सपीरियंस. क्या हुआ है कि ओवर द इयर्स जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है एवरेज कंज्यूमर के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया. अगर आज की डेट में आपके पास क्रेडिट कार्ड की बिल आती है और उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, मैं गारंटी कर सकता हूँ आप कैलकुलेटर लेके ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ. यू कैन नॉट अराइव एट इट बिकॉज द फॉर्मूला बिहाइंड इट फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज सो कॉम्प्लेक्स. ठीक है, फिर आपकी अगर पेमेंट लेट होती है तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और एक लेट पेमेंट फी भी आएगी. अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट क्रॉस करते हैं उसके लिए एक ओवरड्राफ्ट लिमिट फीस आ जाएगी. तो कस्टमर जो भी करता है बैंक उसमें कुछ पैसे बनाने की कोशिश करता है. ठीक है, तो गोल्डमैन सैक्स में हमने कहा कि हम वी वोंट चार्ज फीस फॉर एवरीथिंग फ्रॉम द कस्टमर. देयर बी अ चार्ज इनिशियली फॉर गेटिंग अ कार्ड, वो फी है, बट एवरी स्टेप ऑफ द वे वी विल नॉट चार्ज फी. सो वी क्रिएटेड अ सिंप्लीफाइड एक्सपीरियंस. ओके, और सिंप्लीफिकेशन में बड़ी ताकत है. जो अभी एक बड़ी, आई वांट टू मेंशन दिस, सो इन माय केबिन there's a code which is called devil is in the detail, and it's very close to me, so I showed him that code and he gave me a very interesting quote in return. Could you repeat that here? तो क्या, devil is in the detail but simplicity is divine. ठीक है, तो both have a role. डिटेल में भी जाना है, but you have to simplify the experience. Very nice. Strategy which is not simple cannot be executed. Problems till they are not simplified can't be solved. UX design which is not simple doesn't get used. ठीक है, तो हर चीज में simplification का एक बड़ा रोल है. Definitely. And now finally you are in Apexon. थोड़ा आप अपने करंट काम के बारे में बताइए. So Apexon is an interesting firm. It specializes in creating digital experiences. Okay, so all the way from designing the experience to building the experience to managing the experience, that's what we do for our customers. So we have deep expertise in creating digital platforms and digital products.
deep expertise in testing them, deep expertise in managing the data that comes out of it. Okay, so data engineering, data science is a big part of the capability that we have developed. So this is what we do. So we don't do everything that a typical IT company does. We do a fewer number of things. Mainly digital. But those things that we do better than. I like it. देखो सेल्समैन एट हार्ट, ठीक है, आप जब क्या होता है कि जब आप शुरुआत सेल्स से हुई है एंड वो आप छोड़ोगे नहीं कभी. एक्चुअली मैं तो यंगस्टर्स को हमेशा एडवाइस करता हूँ, आप जिंदगी में जो भी करना हो, चाहे आपको HR प्रोफेशनल बनना है, फाइनेंस प्रोफेशनल बनना है, बेचना आना चाहिए. जिंदगी के पहले 3 साल सेल्स में ही बिताने चाहिए. उसके बाद जो मर्जी कर लो. तो मैं अब अपना वी आर इन द क्लोजिंग सेगमेंट ऑफ आवर थिंग. आपने एंटरप्राइज सेल्स को बहुत क्लोजली देखा है, स्केल किया है. हम भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ. आई एम 23 ईयर ओल्ड राइट नाउ. आई वांट सम एडवाइस फ्रॉम यू कि एंटरप्राइज सेल्स के बारे में अगर आप मुझे 1 या 2 चीज़ें सिखाना चाहो जो आपकी लर्निंग है, क्विक लर्निंग की, भाई बेटा ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्या हो 1-2 चीज़ें. यार कस्टमर में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट यू आर वेरी ईगर टू गेट हिज बिजनेस. ठीक है, ये मिथ है कि कस्टमर जो सबसे कम प्राइस कोट करता है उससे ले लेता है, जिसके सबसे ज़्यादा फीचर होते हैं उससे ले लेता है. एंटरप्राइज सेल्स में कस्टमर उसके साथ बिजनेस करता है जहां उसको लगता है कि ये ट्रूली मेरे साथ काम करना चाहता है. तो उसको ये लगना चाहिए कि आपके बस में जो भी है सब कर रहा हूँ, आप वो सब कर रहे हैं ताकि आपको उसका बिजनेस मिल जाए. अगर आपने उसको वो फीलिंग दे दी तो वो अपने आप आपको गाइड करेगा कि अब आपको कैसे किस प्राइस पे कोट करना है, कैसे टेंडर भरना है, RFP कैसे रिस्पॉन्ड करना है, खुद ही आपको बता देगा. ठीक है, तो कस्टमर शुड सेंस योर कीननेस टू डू बिजनेस विद द कस्टमर. एंड कभी-कभी वो डेस्परेशन नहीं लगती कि डजंट मैटर. होने दो डेस्परेशन. हम तो यार आई एम अ स्मॉल कंपनी, आई एम डेस्परेट, and because I am desperate you will get the best service, disproportionate amount of attention from me. yeah very nice. एंड नहीं, ये बहुत सही बात बोली आपने. मैं खुद सोच रहा हूँ, मैं तो काम चल रहा है दिमाग में. एंड फाइनल थिंग, यंगस्टर्स सुन रहे हैं काफ़ी, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर आजकल एक बड़ी टेक है. एंड मैं जब भी मतलब आपसे मैंने बात की, आपका हमेशा एक उस पर बड़ा स्ट्रिंजेंट आंसर रहता है. तो कोई यंगस्टर सुन रहा है, वो डिसाइड कर रहा है क्या वर्क लाइफ बैलेंस करूँ, क्या करूँ, क्या बोलना चाहोगे? यार यंगस्टर की चॉइस है. ठीक है, तो जब भी आप कोई चॉइस लेते हैं तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है. ठीक है, तो अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जिसका लिटरल मीनिंग है कि आप ना वर्क पे एक्सेसिव टाइम लगाएंगे ना लाइफ पे एक्सेसिव बनाएंगे, थोड़ा बैलेंस बनाएंगे. तो अगर आप बैलेंस टाइम स्पेंड करेंगे तो दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, फिर आपका वर्क साइड टेक ऑफ नहीं करेगा. तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच तब होता है जब आदमी कहता है कि यार मुझे लाइफ भी अच्छी चाहिए, काम भी अच्छी, और मेरे को मेरी प्रमोशन भी सबसे तेज़ होनी चाहिए. ठीक है, अब अगर कोई ऑफिस में 7 दिन काम कर रहा है और वो आपसे डबल थ्रूपुट निकाल रहा है, उसकी प्रमोशन पहले होगी, उसका बोनस ज़्यादा होगा, उसका इंक्रीमेंट आपसे ज़्यादा होगा. तो उस समय आप ये नहीं कह सकते कि ओहो ये तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई. दैट टाइम यू कांट कंप्लेन बिकॉज इट वाज योर चॉइस. ठीक है ना. नहीं. तो जहाँ वो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा. तो जिस कप में गुड़ जाएगा वो कप मीठा हो जाएगा. ठीक है, तो नहीं संदीप, आज तो मजा आ गया. आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड मुझे फीलिंग है एक और कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी आपसे. जरूर. और उस कॉन्वर्सेशन में मैं थोड़े धंधे की बात करूंगा कि हम थोड़ा IT सर्विस इंडस्ट्री को थोड़ा और ब्रेक डाउन करेंगे. आप और गाइड करना. बट थैंक यू, आप आए. इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू. थैंक यू सो मच संदीप. थैंक यू.